Okay, so that thing is okay with you, clearly understandable. बोलोगे yes or no? आगे बढ़े? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now here is the hierarchy. That means अगर तुम्हें बहुत बड़ा एक चैनल को ग्रुप करना है, बहुत बड़ा चैनल को तुम्हें मर्ज करना है, then individually in this way you have to merge it. इंडिविजुअली एक साथ सारे लेवल को तुम मर्ज कर नहीं सकते. So that will be separated in some groups, and group wise you can merge up second stage, third stage, fourth stage, you can merge up. See, that is hierarchy, it must follow. 4 4 4 4, if 12 voice channel are adding, that means to 48, 12 से ज्यादा तुम चैनल जनरली हम लोग नहीं करते हैं. So then it becomes this group, this is called a group. अब सिंगल ग्रुप 5 ग्रुप को अगर मैं ऐड करूंगा, that becomes a super group. That super group again we got 10 5 super group. That 10 super group, it if will merge, then it will call master group. Then 6 master group if I merge, then it is called merge jumbo group. That is the hierarchy you will maintain. Always you maintain this 12 5 10 6 in this way specifically. That why specifically? That is taken, that is taken universally. This actually multiplexing technique taken as universally, so that you have to follow, ताकि किसी को भी ये चीज समझ में आए कि कैसे तुम, किसी को भी ये तुम्हें समझ में आए कि अगर तुम तुम्हारे हिसाब से जोड़ देते हो, 10 चैनल एक साथ जोड़ दिए, 12 चैनल एक साथ जोड़ दिए, या 16 चैनल पूरी 20 चैनल एक साथ जोड़ दिए, दैट ये दिखा गया है परफॉर्मेंस घट जाता है. ये देखा गया है परफॉर्मेंस घटता है. एंड एज वेल एज कुछ जो एक्सपर्ट्स है, एक्सपर्ट्स इस पर्टिकुलर जो नेटवर्क तुम क्रिएट करोगे उस चीज को वो लोग उतना अच्छा से समझ नहीं पाएगा. So that is standardized way that you have to perform. This is the analog hierarchy you have to maintain. Now we are coming to go towards the wavelength division multiplexing. If that same thing is happening by wavelength, then it is called wavelength division. Very rarely it is used actually. This wavelength division multiplexing is very rarely used. Very rarely used because wavelength division multiplexing and इससे पहले जो frequency division multiplexing देखा गया है, frequency division multiplexing works better, but generally in optimal signal, this wavelength division multiplexing is used. Wavelength division multiplexing is not very hugely used, and बहुत हाथी घोड़ा भी नहीं है. If it is merged by wavelength, that means first wavelength for this one, मैं क्या बोल रहा था, बैंडविड्थ था वो, बट यहाँ पे वेवलेंथ है, बैंडविड्थ जोड़ रहा था. फर्स्ट बैंडविड्थ फॉर फर्स्ट सिग्नल, सेकंड बैंडविड्थ फॉर सेकंड सिग्नल, थर्ड बैंडविड्थ फॉर थर्ड सिग्नल. ये अगर वेवलेंथ चीज, उसी चीज को मैं करूंगा, फर्स्ट वेवलेंथ जो वेवलेंथ होगा उसको मैंने जोड़ दिया, सेकंड वेवलेंथ जो होगा सेकंड वेवलेंथ जोड़ दिया, थर्ड वेवलेंथ का फर्स्ट पार्ट जोड़ दिया. सो फर्स्ट वेवलेंथ, दिस इज फर्स्ट वेवलेंथ जोड़ दिया, सेकंड वेवलेंथ सॉरी फर्स्ट वेवलेंथ जोड़ दिया, फर्स्ट वेवलेंथ जोड़ दिया, तीनों फर्स्ट वेवलेंथ जोड़ के एक साथ. दिस इज जस्ट द सिंपल थिंग. If it is done by wavelength, this is very rarely used, very rarely used. This is wavelength division multiplexing. So this is WDM is an analog multiplexing technique to combine optical signals. Basically ये optical signals के लिए ही use होता है, specifically optical signals के लिए ही use होता है. Maximum time इस optical signal के लिए use होगा, not for the other signals. Now this is very interesting part. This is time division multiplexing. This is actually very interesting part, very interesting, and this is actually you need for data communication, because digital signal actually we are bothering about. We are not bothering about analog signals basically. So यही time division multiplexing very interesting, and very carefully you have to understand
what is time division multiplexing and how it do. Now see, we send the channel, we divide the channel by time, not अब तुम बोलोगे सर टाइम से कैसे हम इसको डिवाइड कर सकते, कोई एक डेटा सिग्नल जा रहा है उसको हम टाइम से कैसे डिवाइड कर सकते, बिकॉज एक डेटा जाएगा पहुंचेगा तब ना दूसरा हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, हम उसका जो वेवलेंथ है ये उसको डिवाइड कर सकते हैं, उसका जो टोटल बैंडविड्थ है उसको भी डिवाइड मैं कर सकता हूं, बट हाउ वी कैन गिव द टाइम. So that you have to do time. That means very specifically you have to understand here. Very specifically you have to understand. Let's suppose we have 4 signals. We have 4 channels. अब इसमें कुछ डिजिटल डेटा है, इसमें कुछ डिजिटल डेटा है, इसमें कुछ डिजिटल डेटा है, इसमें कुछ डिजिटल डेटा है. डिजिटल डेटा आई एम टेलिंग. नाउ पहला क्या करेंगे, सिंपली हाउ वी कैन डिवाइड इट टाइम. प्लीज वेरी केयरफुली यू टू अंडरस्टैंड कैसे ये टाइम से मैं डिवाइड करूंगा. ये जो सिग्नल 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 दिखा रहा है, कैसे दिखा रहा है, सिंपल सोचो. फर्स्ट टाइम को लेके मैं चलता हूं. ओके, अभी मुझे ये सेंड करना है, एक बिट यहां से सेंड किए, सिंपल यहां पे एक बिट यहां से सेंड किए. 4 सेकेंड बाद या 4 मिली सेकेंड बाद, that is time division. 4 millisecond बाद, 4 millisecond we are assuming, 4 millisecond is not specific time. 4 millisecond मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि मैं assume कर रहा हूं मैं 4 millisecond में डिवाइड किया था, assume कर रहा हूं 4 millisecond मैंने डिवाइड किया था. After some that much of time, that means 4 millisecond, सेकेंड से एक बीट में ट्रांसफर करूंगा. जैसे ही सेकेंड से एक बीट में ट्रांसफर किया, ये फर्स्ट वाला यहां पे पहुंच गया है और सेकेंड वाला यहां पे. अब फिर मैं 4 सेकेंड के बाद, 4 मिलीसेकेंड के बाद थर्ड से एक डेटा, एक बिट ट्रांसफर कर दिया. दैट मींस अब ये पहला वाला कहां पे है, यहां पे. सेकेंड वाला कहां पे है, यहां पे. और थर्ड वाला कहां पे है, यहां पे. इन दिस वे दिस पर्टिकुलर चैनल के थ्रू आगे बढ़ रहा है डेटा. अब फिर 4 मिलीसेकेंड बाद, दैट इज टाइम डिवीजन. 4 मिलीसेकेंड 4 मिलीसेकेंड 4 मिलीसेकेंड 4 मिलीसेकेंड, दैट इज टाइम डिवीजन. जैसे ही 4 मिलीसेकेंड फिर खत्म हुआ, यहां से एक बिट ट्रांसफर कर दी. सो व्हाट हैपेंस, अभी चैनल के अंदर ही है सब कोई. ये क्या है यहां पे, यहां से ये गया यहां पे 2, ये गया यहां पे 3, ये गया यहां पे 4. सो दैट बिकम्स ए सिंगल पैटर्न. दैट मींस हर एक दिस पर्टिकुलर टाइम, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम क्या होगा, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम को क्या करेंगे, एक 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 एक, मतलब टोटल ये जो टाइम डिवीजन है इसमें से एक बिट एक बिट एक बिट एक बिट, चारों से मैंने लिया, सेंड कर दिया. दैट इज द सिंपल थिंग यू हैव टू परफॉर्म. इन दिस वे द टाइम इज डिवाइडेड. इन दिस वे टाइम इज डिवाइडेड. Is the thing clear? Can I make clear to you? So that means at the fraction of time, this ये जो total millisecond अगर ये मैं मान के चल रहा हूँ, एक बीट यहाँ से एक बीट यहाँ से एक बीट यहाँ से एक बीट यहाँ से, 4 बीट को मैंने ट्रांसफर कर दिया. 1 2 3 4, नेक्स्ट अगेन 1 2 3 4, नेक्स्ट अगेन 1 2 3 4, एक 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 एक, फिर एक एक एक, फिर एक एक एक, इस तरह ये ट्रांसफर में कर रहा हूँ. हर एक से एक एक बिट चला गया. सेकेंड हर एक से एक बिट चला गया. थर्ड हर एक से एक बिट चला गया. फोर्थ हर एक से एक बिट फिर चला गया. सो दैट इन दैट वे दिस डेटा विल बी फ्लोड. इन दिस वे डेटा विल बी फ्लोड. सो दैट मींस जो सेकेंड इसने लिया, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. अब यहाँ पे एक चीज मैं दिखाऊंगा. So TDM is a digital multiplexing technique to combining several low rate signal channels into one high rate signal. Why low rate and high rate? Why low rate and high rate? High rate इस चीज को मैं समझाऊंगा जब जस्ट अभी. Very carefully you have to understand. जो भी अगर तुम लोग यहाँ पे नहीं हो या तुम लोग सुन नहीं रहे हो, प्लीज कंसंट्रेट. अगर नहीं सुन रहे हो प्लीज कंसंट्रेट. ये चीज बहुत अच्छा से समझना है तुमको. Synchronous time division multiplexing. Synchronous. Why synchronous time division multiplexing? Because it is time taken is similar.
time taken is similar for each channel. See, this is your time, that means एक टाइम, एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम तुमने फिक्स किया है, दिस इज 4 मिलीसेकंड, लेट्स से 4 मिलीसेकंड। अगर ये मैं फिक्स कर रहा हूं तो उस टाइम पे हर एक बीट से मैंने एक एक बनाया और एक ही साथ उस बीट को सेंड कर दिया, दिस इज फ्रेम 1। तो एक बीट सेंड करने का मतलब, यहां से एक बीट सेंड करने का मतलब यहां से टोटल फ्रेम सेंड हो रहा है, एक बीट यहां, इसका टोटल फ्रेम बीट, दैट मींस दिस इज टी, सो दैट बिकम्स ए टी। सो 3 चैनल है तो 3 से एक बीट से एक सिग्नल क्रिएट करेगा वो, दैट मींस 3 बीट्स का एक सिग्नल क्रिएट करेगा वो। सो दैट इज व्हाई इट इज टेलिंग लो रेट डिजिटल चैनल, लो रेट था वो बिकम्स हाई रेट, बिकॉज अगर 4 चैनल को मैं मल्टीप्लेक्स कर रहा हूं या 3 चैनल को मैं मल्टीप्लेक्सिंग कर रहा हूं, देन टाइम और बीट रेट बिकम्स इंक्रीजिंग बाय 3, बीट रेट इंक्रीजिंग बाय 3, या एक सेकेंड में एक ही जा रहा था, यहां पे एक सेकेंड में 3 बीट चला गया, दैट मींस एक सिग्नल में एक मतलब यहां पे 3 3 3 एक 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 3 3 3 बीट, तो 3 बीट एक साथ यहां सिग्नल बना रहा है, यहां पे एक सिग्नल क्लिक कर रहा है, सो दैट्स व्हाई यहां पे 3 अगर मैं जोड़ूंगा 3 बीट चल जाएगा, दैट इज द थिंग, उस टाइम में 3 बीट पहुंच रहा है। So that's why low rate signal, low rate channel to high channel, because low rate यहाँ पे बहुत कम बीट जा रहा था एक सेकेंड में, यहाँ पे एक सेकेंड में बहुत ज्यादा बीट चला जाएगा, because 3 times मल्टीप्लाई हो रहा है, that's why it is given low rate digital channel into one high rate channel. Is the thing clear? Is the thing clear? ये चीज बहुत अच्छे से समझना, समझ गए हो बोलोगे, नहीं समझोगे तो नहीं बोलोगे। This is called synchronous time division multiplexing. Bit by bit it will add, bit by bit it will add, and it will generate the signal and it will send. See, frame 1 have first bit A1, second bit B1 से, third bit C1 से, second frame 2 में है यहां से एक बीट, यहां से एक बीट, यहां से एक बीट, फ्रेम 3 में है यहां से एक बीट, यहां से एक बीट, यहां से एक बीट, तो एक एक बीट को यहां पे ले रहा है और एक फ्रेम बना रहा है, एक साथ सेंड कर रहा है। दैट इज द सिंपल टेक्निक डन बाय टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इज द थिंग क्लियर टू यू? यस, नो? मैं कुछ एग्जांपल्स में इसके बाद दिखाऊंगा, वेरी इजी एग्जांपल्स बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ये आता ही है, 1 5 नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन आता है यहां से। कुछ एग्जांपल्स मैं दिखाऊंगा, वेरी carefully you have to try to understand. Now, synchronous TDM, data rate of the digital signal is n times faster and the unit duration is n times shorter. So simple, ये n times shorter, this is n times faster. N is the number of channels. Can you see it? Can you see it? Now the data rate for each one of 3 input connection is 1 kbps. पहले फिगर देखते हैं, 3 input signal is 1 kbps. क्या बोल रहा है? 1 kbps, किलोबिट पर सेकेंड, 6.13 यहाँ पे चलो, यहाँ पे 1 किलोबिट पर सेकेंड, this have also 1 kilobit per second, this have also 1 kilobit per second. तो तीनों 1 किलोबिट पर सेकेंड का है, 1 किलोबिट पर सेकेंड, 1 kilobit per second. If 1 bit at a time is multiplex, 1 bit at a time is multiplex, that means एक एक बीट मल्टीप्लेक्स किया जा रहा है, हर एक 3 चैनल से एक एक बीट मल्टीप्लेक्स किया जा रहा है। What is the duration of each input slot, each output slot and each frame? Very carefully you have to understand each input slot, that means what is this? Each input slot, each output slot total, each output slot is this, each output slot, that means this one t by 3. Why? Because एक बीट आउटपुट के लिए टाइम घट जा रहा है,
यहाँ पे टी टाइम में एक एक बीट जा रहा था, यहाँ टी टाइम में 3 बीट पहुंच गया, सो टी बाई 3, दिस इज आउटपुट बीट, आउटपुट डेटा रेट, सॉरी आउटपुट स्लॉट, एंड ईच फ्रेम, फ्रेम का टाइम भी पूछ रहा है, दैट मीन्स टोटल फ्रेम का टाइम। सो टोटल फ्रेम का टाइम और यहाँ का इनपुट टाइम सेम, थिंग इज क्लियर और नॉट? इनपुट स्लॉट, आउटपुट स्लॉट और फ्रेम का टाइम ड्यूरेशन पूछा जा रहा है। थ्री थिंग्स, इनपुट टाइम स्लॉट दैट इज दिस वन t, आउटपुट टाइम स्लॉट दैट इज दिस वन t by 3, एंड उसके साथ फ्रेम टाइम, दैट मीन्स फ्रेम, एक फ्रेम कितना टाइम में जा रहा था t, so that is exactly same as input signal, input slot, input slot जो होगा वही होगा टोटल फ्रेम का टाइम। yes it is or not, clear it is or not? तुम लोग सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो? मुझे लग रहा है तुम लोग नहीं सुन रहे हो। हेलो, आर यू देयर? Yes, sir. समझ में आ रहा है? जवाब दोगे तुम लोग? ये चीज समझ में आ रहा है? यस नो? आप जवाब नहीं? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Now आंसर देखो, इसका आंसर देखो, वेरी वेरी केयरफुली सी। सो ईच इनपुट स्लॉट, क्या बोला गया है? 1 kbps, 1 kbps द स्पीड, दैट मीन्स एक बीट कितना टाइम में जाएगा? सर 1 मिलीसेकंड चाहिए। एक सिर्फ 1 मिलीसेकंड 1 by चाहिए। 1000। समझ में आया है? समझ Yes, के sir. बोले हो? कॉपी में लिखे भी है। Okay, very good. So that means simply very carefully you have to understand 1 kbps का मतलब क्या होता है? 1000 बीट पर सेकंड जा रहा है, 1000 बीट एक सेकंड में जा रहा है, that is 1 kbps mean, that is 1 kbps mean 1 kbps, that means 1 kilobit per second, that means 1000 बीट पर सेकंड। 1000 बीट पर सेकंड अगर होगा तो एक बीट में कितना टाइम लगेगा? 1 by 1000, 1 by 1000 that means 1 millisecond. So 1 millisecond is the हर एक each input slot, yes or not? Each input slot. So that means अगर सिंपली यहाँ पे देखो, अगर इसमें 1 किलोबीट पर सेकेंड जा रहा है तो एक बीट में कितना टाइम लग रहा है? 1 मिलीसेकेंड। दिस थिंग इज वेरी क्लियर टू यू। सो ये जो t निकल गया मेरा 1 मिलीसेकेंड। Now see, now each input slot तो मुझे मिल गया, so that means each input slot का टाइम कितना होगा? 1 मिलीसेकेंड। Now each output slot, can anyone tell? सर वही 3 में डिवाइड हो जाएगा, 3 में डिवाइड हो जाएगा बिकॉज एक फ्रेम जा रहा है 3 बीट में, so that is 1 by 3 millisecond, yes or not? 1 by 3 मिलीसेकेंड क्लियरली समझ में आया? आउटपुट स्लॉट में 1 by 3 मिलीसेकेंड। सी अगेन, दिस इज 1 by 3। एक टाइम में 3 बीट जा रहा है, एक टाइम में यहाँ 1 बीट 2 बीट 3 बीट, तीनों से एक एक जा रहा है। सो टोटल टाइम में, उसी टाइम में जो टाइम था उसी टाइम में 3 बीट जा रहा है। So एक बीट में कितना टाइम लगेगा? t by 3। What is t? We have calculated just now 1 millisecond. So 1 millisecond, that means 1 by 3 millisecond for each output slot. This is each output slot, each output slot, एक बीट का आउटपुट स्लॉट। That's why ये एक बीट का आउटपुट स्लॉट। और each फ्रेम का कितना होगा? फ्रेम का कितना होगा फिर? बोलो बोलो। सर ईच फ्रेम का तो 1 मिलीसेकंड 1 मिलीसेकंड ही हो जाएगा। सो दैट मींस क्या क्या समझ में आया तुमको? ईच इनपुट स्लॉट का 1 मिलीसेकंड, इसका 1 by 3 मिलीसेकंड, इसका 1 मिलीसेकंड। सो इसका आंसर सी देखो, दिस इज ईच इनपुट डेटा 1 मिलीसेकंड, 1 by 3 मिलीसेकंड,
each output time 1/3 millisecond, and output slot का again 1 millisecond, 3 frames, each फ्रेम का मतलब होगा एक फ्रेम में 3 बिट है, तो एक फ्रेम कितना टाइम में जा रहा था, वही t टाइम में जा रहा है, that is time division, so that is 1 millisecond. Is the thing clear? So that means here it you can see the note में दिखा रहा है the duration of the frame is the same as the duration of the input unit. Is the thing clear to you? Is the thing clear to you? Yes, no? Yes, no? Yes, sir. Okay. Now second example. पढ़ो अच्छा से, एग्जाम्पल पढ़ो अच्छे से, फिगर मैं बाद में देखता हूं. 4 Mbps data stream input for 1 Mbps data stream and 1 data stream for output input and 1 data stream for the output, मतलब एक data stream पूरा 1 Mbps data stream and 1 data stream for the output. That unit for the data is 1 bit. Again एक bit ट्रांसफर हो रहा है, एक bit ही मल्टीप्लेक्स हो रहा है, सिंगल बिट मल्टीप्लेक्स हो रहा है. फाइंड द इनपुट बिट ड्यूरेशन. Can you calculate one input bit duration? Please calculate it first. सर वो 4 सर क्या, वो नहीं समझ में आया सर. 4 TDM 1 with 4. Mbps, यहाँ पे 4 1 Mbps, 4 के बीच में स्पेस है, 4 1 Mbps. दैट मीन्स सिंपल चार मतलब चैनल है, 4 चैनल है और हर एक का 1 Mbps स्पीड है. जैसे कि यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 3 था ना, ये 4 चैनल होगा इस तरह का और हर एक का स्पीड होगा 1 Mbps. इज दैट क्लियर? सर 10 की पावर -6 सेकंड. Yes. So now think bit bolo. So what is the input bit duration then? एक सेकेंड में अगर 10,000 yes sir 1000 into 1000 बीट जा रहा है 1 Mbps. That means सर 1 by मतलब 10 की 1 पावर by 10 to the -6 power divided by 6. 4. That means 1 by 10 to the power 6. Yes, it is 1 by 10 to the power 6 second. That means 1 microsecond. Thing is very clear to you? Yes or not? Clear? मैं क्लियर कर पाया? So input bit duration क्या हो गया? 1 microsecond. क्लियर हुआ? Then output bit duration क्या होगा? आउटपुट बिट ड्यूरेशन क्या होगा बोलो? 4 चैनल है तो डेफिनेटली दैट 1 माइक्रोसेकेंड डिवाइडेड बाय 4. 1 माइक्रोसेकेंड डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 1 by 4 माइक्रोसेकेंड. थिंग इज क्लियर टू यू? यस नो बोलोगे? हाँ ना? क्लियर है? Yes, sir. Now the output bit rate. Third one. Output bit rate. Please very carefully. Bit rate. That means कितना beat per second? How many beat per second? How many beat per second? Please anyone tell. पहला वाला 1 Mbps, सेकेंड वाला 1 Mbps, थर्ड वाला 1 Mbps, फोर्थ वाला 1 Mbps. सो आउटपुट बिट रेट क्या होगा? फोर Mbps. Yes or not? बिकॉज उसी टाइम पे बहुत अच्छे से ध्यान से समझना, यहाँ पे देखो
एक टाइम पे सिंपली एक टी टाइम पे कितना बीट जा रहा है? 3 बीट, बिकॉज 3 चैनल है। तो डेफिनेटली दैट 1 Mbps yes अगर स्पीड है, दैट मींस इंक्रीज बाय थ्री मतलब 3 टाइम्स, दैट मींस 3 टाइम्स। ये अगर 1 Mbps का स्पीड का है और हर एक बीट से एक एक टाइम में एक एक बीट ले रहा है, तो डेफिनेटली दैट विल इंक्रीमेंट बाय, उसी टाइम में 3 बीट पहुंच रहा है, तो अगर 4 होता तो 4 बीट पहुंचता, उसी टाइम में 4 बीट पहुंच जाएगा। दैट मींस व्हाट हैपेंस, यहाँ पे 1 माइक्रोसेकंड में फॉर दिस पर्टिकुलर सिग्नल, 1 माइक्रोसेकंड में इस पर्टिकुलर सिग्नल के लिए 1 माइक्रोसेकंड में कितना बीट पहुंचेगा? 1 माइक्रोसेकंड में 4 बीट पहुंचेगा, यस और नॉट? 1 माइक्रोसेकंड में 4 बीट पहुंचेगा आउटपुट में। तो अगर आउटपुट में 4 बिट है 1 माइक्रोसेकंड में, इफ आई कैलकुलेट रिवर्स इट, एक सेकंड में कितना जाएगा? देखना, 4 Mbps बन जाएगा। 4 Mbps, it is okay with you? And what is the frame rate? Frame rate again equals to will be the 1 Mbps, because जितना एक बिट घुस रहा है उतना टाइम में वो एक फ्रेम क्रिएट कर दे रहा है। एक बिट इक्वल्स टू एक फ्रेम, इनपुट में एक बिट इक्वल्स टू आउटपुट में एक फ्रेम। तो सेम इक्वल्स टू हो जाएगा इनपुट बिट स्ट्रीम और आउटपुट बिट फ्रेम। सो फ्रेम रेट कितना होगा? 1000 Mbps नहीं बोलेंगे, 1000 फ्रेम पर सेकेंड, 1000 इंटू 1000 फ्रेम पर सेकेंड। और आउटपुट बिट रेट क्या हो जाएगा? 4 Mbps। लेट्स सी हियर, 4 Mbps output bit rate 4 Mbps and output frame rate 1000 into 1000, because this is Mbps. Please very carefully you have to understand Mbps. MB means megabit per second and 1 Mbps अगर है तो 1000 into 1000 bit, so 1000 into 1000 frame per second it will move. Is the thing clear to you or not? Is the thing clear to you or not? बोलोगे हाँ ना? Is the thing clear to you? Yes, no? Please. बोलो बोलो बोलो, क्या तुम लोग? यस सर। अंजलि, अंजलि, यस सर। सुन रहे हो? यस सर। समझ Yes, रहे हो? sir. शिवांगी, यस सर समझ। शिवांगी, Yes, sir. समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. विवेक, विवेक, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम लोग सुन रहे हो या समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? विवेक नहीं सुन रहा है। विवेक मंडल, लताश्री, Yes, sir. सुन रहे हो? Yes, sir. मोहित, मोहित प्रसाद, यस सर। सुन रहे हो? समझ रहे हो? यस सर। यस सर। विवेक नहीं सुन रहा है। विवेक, अविनाश, अविनाश सुन रहे हो? या सर सुन रहे। ओके, विवेक नहीं सुन रहा है। चलो, ओके, नाउ नेक्स्ट। So this is the thing, it is given. So one bit ये जा रहा है 1 Mbps। so हर एक फ्रेम बन रहा है, हर एक से एक फ्रेम बना रहा है। so definitely that is the picturized one, the previous one. Now next example again, that you have to calculate, that you have to do yourself, and you have to tell me for 1 Mbps connection, 1 kbps connection are multiplexed together.
unit is again 1 bit. Now you have to do, Shivangi, you have to perform it. What is the duration of 1 bit before multiplexing? Duration of 1 bit before multiplexing. Shivangi, tell me. One kbps कनेक्शन, दैट मीन्स 1000 किलोबिट जा रहा है एक सेकेंड में, 1000 किलोबिट जा रहा है एक सेकेंड में. नाउ एक बीट का कितना टाइम है, एक बीट का टाइम कितना है, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. इट इज टेलिंग द ड्यूरेशन ऑफ 1 बीट बिफोर मल्टीप्लेक्सिंग. कैन एनीवन टेल? शिवांगी, शिवांगी. 1/1000 of a second. हाँ, यस, 1/1000 of a second. That means 1/1000 of a this. That means 1 millisecond. Clear? Yes, sir. Okay. First one done. Now the transition rate of the link. Transition rate of the link. Transition of the link. Link. Please. Transition rate of the link. That means कितना स्पीड में वो जा रहा है. आशा, आशा दिग्गा. Can anyone? Can you tell this? Transition of the link. Link. Simply understand this and calculate this. Asa Tigga. Are you there? Yes, Asa Tigga. बोलो. नहीं सुन रही हो. गोविंद, आर यू देयर? सर, यस सर. बोलो, इसका आंसर बोलो. द ट्रांजिशन रेट ऑफ द लिंक. Sir, it will be 4 times the speed of each bit. Okay, Yeah, that means is 4 4 kbps. 4 kbps. Is Yes. that okay? Everyone, this thing is okay. तो 4 kbps अगर जा रहा है तो वो 4 times increase कर जाएगा. That is 4 kbps. Then third example, the duration of the time slot in output time slot. Output time slot. बोलो, मोहित बोलो, मोहित. Yes, sir. Output of the time slot, this duration of the time slot. This is third one. So tell the answer. Duration of a time slot. That means तुम्हारा जो टाइम स्लॉट 1 mbps का बन रहा था वो आउटपुट में कितना है. 1 kbps इन द इनपुट, आउटपुट में कितना है. एक बीट आउटपुट में कितना पर पहुंच रहा है. एक बीट जाने के लिए सिंपल, बहुत अच्छे से ध्यान से समझना, एक बीट इनपुट घुस रहा है 1 मिलीसेकंड में, इनपुट जा रहा है 1 मिलीसेकंड में, एक बीट. तो आउटपुट में कितना होगा. 4 बीट, उसी 1 मिलीसेकंड में 4 बीट निकल जा रहा है इन आउटपुट, बिकॉज वी हैव 4 कनेक्शंस. उसी 1 मिलीसेकंड में 4 बीट निकल जा रहा है इसमें आउटपुट में. सो व्हाट इज द आउटपुट टाइम स्लॉट? मोहित, अभी भी मैं पूरा हिंट दे दिया. Sir, 1 divided by 4. 1 divided by 4 मिलीसेकंड. इज द थिंग क्लियर? मोहित कैलकुलेट नहीं कर पाए, सो प्लीज समझ में आया? Sir, yes, sir. I got it. Okay. Now fourth one. Duration of a frame must be equals to, Avinash, can you tell it?
must be equals to बोलो फ्रेम, ड्यूरेशन ऑफ द फ्रेम 1 millisecond. 1 मिलीसेकेंड, बिकॉज एक बीट जब ये बन रहा था, एक बीट जो इनपुट हो रहा है उस टाइम पे वो एक फ्रेम क्रिएट कर रहा है, उसी टाइम पे वो एक फ्रेम क्रिएट कर रहा है. सो व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ ए फ्रेम? 1 मिलीसेकेंड अगेन. थिंग इज क्लियर? थिंग इज क्लियर टू यू? यस, नो? यस, नो? वेरी क्लियर. सो सी हियर इट इज 1/4 kbps, that means 1/4 microsecond. It is 150 microsecond. This is output team flow. 1/4, that means 1/4 millisecond, that is 250 microsecond. And what it is, this is again 1 millisecond, because एक frame में 4 बीट है, again 4 से multiply हो जाएगा, that is 1 millisecond. So in any way you can think and you can create, you can solve this particular problems. Is the thing clear to you? मैं समझा पाया? Time division multiplexing, frequency division multiplexing and wavelength division multiplexing. Okay, मैं समझा पाया? बोलो yes, no? क्लियर हुआ है तुम लोगों को? सर आवाज नहीं आ रहा सर आपका. हाँ, आवाज नहीं आ रहा था सर आपका वॉइस थोड़ा कट कट के आ रहा है. हाँ, अभी आवाज चला गया था, बट अभी ठीक है. आई थिंक क्लास इज ओवर. ऐसे Yes. कोई ये नहीं है अभी. Yes. ठीक है, चला गया था नेट, मुझे पता है. सो ओके, नाउ दिस थिंग इज ओके, क्लियर टू यू? अभी तक जो भी समझे हैं ये क्लियर हुआ है पूरा? ये 3 एग्जांपल्स वेरी केयरफुली अगेन यू हैव टू गो थ्रू दिस एग्जांपल्स. यू ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन. अगर नहीं समझ में आता है फिर तुम नेक्स्ट डे क्लास क्वेश्चन करोगे इसको लेके. ओके ओके, कैन आई स्टॉप? ओके सर. Class is over. Thank you.